Hello everyone. In today's class, we will discuss about water logging. So, water logging is a condition where water table rises to within or near the root zone of the plants. So, basically water logging में soil जो है वो saturate हो रही है या जो water level है वो increase हो रहा है. अभी इसमें source of water कुछ भी हो सकता है. Either heavy rainfall के कारण water table rise हो सकता है या इरिगेशन के कारण भी हो सकता है. इसके सेवरल रीजंस हो सकते हैं. सो जब भी वाटर टेबल राइज होगा जो कि हार्म करेगा किसी भी क्रॉप्स को या क्रॉप ग्रोथ को, दैट इज नोन एज द वाटर लॉगिंग कंडीशन. सो लाइक दिस इज द और ग्राउंड लेवल एंड दिस वन इज योर ग्राउंड वाटर लेवल. अब जब ये वाटर लेवल राइज होगा, राइज होने के कारण इट विल अफेक्ट द क्रॉप ग्रोथ. ये यहाँ या इस तरफ जब कभी वाटर लेवल राइज होगा, इट विल अफेक्ट द क्रॉप ग्रोथ बिकॉज ऑफ saturation of soil. अब saturated soil है, so there will be less pores, एरिएशन लेस होगा, एरिएशन में डिफिकल्टीज होगी. इस कारण से कहीं ना कहीं क्रॉप की यील्ड को अफेक्ट करेगा एज वेल एज ये लैंड को अनसुटेबल बनाएगा फॉर द कल्टीवेशन. So there are two type of waterlogging conditions. One is subsurface waterlogging condition and another one is the surface waterlogging condition. So surface waterlogging commonly occurs in the irrigated lands. And ये subsurface waterlogging कब कहलाएगी? जबकि जो root zone है वो saturated हो या saturation हो जाए up to root zone. In that case, the waterlogging is known as the subsurface waterlogging and it involves the टेम्पररी सेचुरेशन और सेलो वाटर टेबल हो सकता है जो कि अफेक्ट करेगा रूट जोन को और सॉइल सरफेस को. नाउ सरफेस वाटर लॉगिंग. सो सरफेस वाटर लॉगिंग में जो वाटर है इट विल स्टैग्नेंट फॉर द लॉन्गर पीरियड ओवर द लैंड सरफेस. एंड ये क्यों होता है, इसका कॉज क्या है सरफेस वाटर लॉगिंग का? इट अकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर आउटलेट या इम्प्रॉपर ड्रेनेज, जो इस केस में भी सरफेस वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो सकती है. एंड अनदर रीजन इज यदि लो इन्फिल्ट्रेशन रेट है, यदि जो उसमें इनपुट वाटर आ रहा है इधर रेनफॉल से या इरिगेशन से, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू इन्फिल्ट्रेशन रेट, इन दैट केस the surface water logging also occurs. Now, so here we can see, here are two images. One is for water logging, another one is the ponding. In case of water logging, there are two type of water logging, subsurface and surface. So surface water logging के case में the water will stagnant over the land surface for the longer time period. While in case of ponding, जो वाटर टेबल है ये टेम्पररीली स्टोर होगा ओवर द लैंड सरफेस. नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग? सो और इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग. सो देयर आर फिजिकल इम्पैक्ट्स, chemical impacts, biological impacts, agricultural impacts, and there are also impact on the fooder crops. So we will see these impacts one by one. So first we'll see the physical impacts. So in physical impact, there are oxygen depletion in the root zone, difficulty in operations, soil structure deterioration. These are the impacts. So oxygen depletion like water logging के कारण जो सॉइल पार्टिकल्स हैं ये सैचुरेटेड हो गए हैं और जो एयर पोर्स थे उसे भी वाटर लॉगिंग ने या जो वाटर पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया. अब इस कारण से जो प्लांट्स हैं इनमें ऑक्सीजन की deficiency होगी और due to deficiency of oxygen they will not able to get proper amount of oxygen for the respiration and it will reduce the plant's ability to absorb water as well as nutrients. Now जो waterlogged soil है, due to waterlogging the soil become sticky हो जाएगी. So sticky soil में tillage या cultivation करना थोड़ा मुश्किल होता है. So it will hamper the field operations like plowing, planting, harvesting, etc. Then soil structure deterioration. So जब long time के लिए water logged रहेगी soil, उस केस में जो soil particles है, soil aggregates हैं, ये break down होंगे. break down के होने के कारण it will cause the compaction and reduce the permeability. अब compaction ज़्यादा होगा, compacted particle में voids कम होंगे,
which that will reduce the permeability and it will weaken the ड्रेनेज कैपेसिटी एंड लिमिट ऑफ एरिएशन. अब वॉइड्स ही कम होंगे उस केस में इसकी ड्रेनेज कैपेसिटी भी कम हो जाएगी एज वेल एज जो एरिएशन के लिए ऐसे स्पेस नहीं मिल पा रहा है, सो इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम्स इन एरिएशन. नाउ केमिकल इम्पैक्ट्स. सो इन केमिकल इम्पैक्ट्स there is a salt accumulation in the root zone, secondary salinization, alteration in pH and nutrient availability. So जब वाटर स्टैग्नेंट रहेगा, सो कैपिलरी राइज के कारण जो वाटर है will bring the salts from lower layer to upper layer and upper layer या surface layer में आने के बाद में ये accumulate हो जाएंगे और accumulation के कारण it will hamper the ability of soil to absorb moisture as well as nutrients. And the waterlogged and salt accumulation जो soil है, it will also alter the pH, making it either too acidic या too alkaline. So waterlogging also have the biological impact. So in biological impact, the waterlogging affects the microbial activity, it reduces the microbial activity. अब ये जो anaerobic condition होगी, anaerobic condition उस एरिया में या उस लैंड में जो भी बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट करेगी एंड उससे रेस्ट्रिक्ट करने के साथ साथ ही जो एनारोबिक माइक्रोब्स, हार्मफुल एनारोबिक माइक्रोब्स को प्रमोट करेगी जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे सॉइल डिग्रेडेशन में एज वेल एज प्लांट स्ट्रेस में. इसके साथ साथ ये जो कंडीशन है ये फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगी फॉर द पेस्ट एंड डिसीजेस एंड इंक्रीज इन पेस्ट एंड डिसीज जो है ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी क्रॉप की ग्रोथ को एंड उसकी प्रोडक्टिविटी को. नाउ एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट. सो एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट्स आर लाइक यील्ड रिडक्शन, फ्लडिंग एंड क्रॉप डैमेज. सो अनएरोबिक कंडीशन के कारण इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर अपटेक है जो कि रिड्यूस करता है क्रॉप की यील्ड को एंड इन सीवियर केस द क्रॉप फेल्योर में अकर. एंड इसके साथ साथ यदि पुअरली ड्रेन्ड सॉइल है उस एरियाज में सलाइन सॉइल एक्सपीरियंस मोर सरफेस रन ऑफ ड्यूरिंग दी रेनफॉल और ये सरफेस रन ऑफ ज़्यादा होगा उससे फ्लडिंग की कंडीशन कॉज करेगी और जो फ्लडिंग की कंडीशन कॉज करेगी दैट विल अफेक्ट द एडजेसेंट क्रॉपलैंड. नाउ इम्पैक्ट ऑन फूडर क्वालिटी. सो जब फूडर किसी भी फूडर क्रॉप को वी ग्रो इन दी साल्ट अफेक्टेड सॉइल, इन दैट केस साल्ट एक्यूमुलेट एक्सेसिव मोलिबिडनम एंड सेलेनियम कंटेंट को और ये जो सेलेनियम एंड मोलिबिडनम कंटेंट है ये टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं इन दी लाइव स्टॉक एंड इसके साथ साथ में जिंक का लेवल भी जो है, जिंक का कंटेंट भी है, इट विल ऑल्सो रिड्यूस एंड इसके रिडक्शन के कारण जो लाइव स्टॉक्स हैं इनमें काफ़ी हेल्थ इश्यूज आते हैं एज वेल एज न्यूट्रिएंट इम्बेलेंस होता है. साथ ही साथ ये जो फूडर क्वालिटीज के डेट्यूरेशन के कारण जो एनिमल्स हैं इनकी पुअर ग्रोथ होगी एज वेल एज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन द एनिमल्स. नाउ हाउ वी डिसाइड द एरिया इज waterlogged area or it's safe area or which area having the potential of water logging. So there are two type of classification. One is given by the Ministry of Water Resources and another one is given by the Michael and Bhattacharya. So we'll see one by one. So in Ministry of Water Resources they considered only water table. They haven't considered the criteria like season and the routing zone etc. So as per the Ministry of Water Resources, when the water level lies within the 2 meter is known as the waterlogged area. And when the water table lies within 2 to 3 meter, that is known as the potential area for waterlogged. And if the water table lies from 3 to 5 meter, that is known as the safe area, means there are no chances of water logging. So here we can see this values represents the water table and here it's a land surface. Now we'll see the another classification of waterlogged areas. So according to this classification, this improved classification by Bhattacharya and Michael 2003. So they classified the area based on water table as well as they considered the season. So they considered two seasons.
pre-monsoon season and post-monsoon season, and according to that they classified the area. So here, if the water table is within 2 meter in the pre-monsoon season, in that case the area is known as the waterlogged area. एंड यदि पोस्ट मानसून सीजन में वाटर टेबल विद इन 1 मीटर है, उस केस में किसी भी एरिया को बोला जाता है वाटर लॉक्ड एरिया। देन दूसरी कंडीशन है क्रिटिकल एरिया फॉर वाटर लॉगिंग। सो जब प्री मानसून सीजन में वाटर टेबल होगा 2 to 3 मीटर्स, इन दैट केस दैट इज नोन एज द एरिया क्रिटिकल फॉर वाटर लॉगिंग। एंड यदि ये 1 to 2 मीटर्स है तब इससे पोस्ट मानसून सीजन में देन इट इज कंसिडर्ड एज द क्रिटिकल एरिया फॉर वाटर लॉगिंग। एंड यदि प्री मानसून सीजन में ये 3 to 5 मीटर तक वेरी करता है water table, in that case the area is known as potential area for water logging. So यदि पोस्ट मानसून सीजन में प्री मानसून सीजन में यदि वाटर टेबल 3 to 5 मीटर है, सो ये एरिया पोटेंशियल है फॉर द वाटर लॉगिंग। क्रिटिकल होगा जब मानसून में 2 to 3 मीटर है एंड पोस्ट मानसून में 1 to 2 मीटर्स हैं। एंड यदि विद इन 2 मीटर है प्री मानसून में तब ये वाटर लॉक्ड एरिया कहलाएगा। एंड विद इन 1 मीटर है ड्यूरिंग द पोस्ट मानसून सीजन, इन दैट केस द एरिया इज नोन एज द वाटर लॉक्ड एरिया। नाउ विल सी द कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग। व्हाट आर द कॉजेज? कौन से चीजें हैं जो अफेक्ट करती है या जो कंडीशन क्रिएट करती है वाटर लॉगिंग के? सो देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉजेज, वन इज द नेचुरल कॉज एंड अनदर वन इज द ह्यूमन कॉज। सो नेचुरल कॉज में आते हैं लाइक रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरह की रेनफॉल है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, इंटेंसिटी क्या है। सो डिपेंड करता है रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स में। टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है, लाइक जो टोपोग्राफी इस तरह की है कि उससे नेचुरली वाटर ड्रेन हो पा रहा है। यदि अंड्यूलेटिंग लैंड है उस केस में वाटर विल स्टैग्नेंट ओवर द सरफेस, एंड स्टैग्नेंट जो वाटर जब स्टैग्नेंट होगा इट विल प्रमोट दी water logging, yeah, it will promote the saturation condition. Then back entry from the river, यदि किसी रिवर से वाटर बैक एंटर कर रहा है इन दी लैंड सरफेस, इस केस में भी वाटर लॉगिंग हो सकती है या वाटर लॉगिंग कॉज करेगा ये। देन जब किसी कैनाल से या कोई अनलाइंड कैनाल है या लाइंड कैनाल है, देयर आर 2 टाइप ऑफ कैनाल, वन इज लाइंड एंड अनदर वन इज द अनलाइंड। सो यदि अनलाइंड के केस में तो सिपेज हो सकता है, बट लाइंड कैनाल यदि डैमेज्ड हो उस केस में लाइंड कैनाल से भी सिपेज हो सकता है। सो जो ये सिपेज होगा कैनाल से, लेट मी एक्सप्लेन। लाइक दिस इज द कैनाल। अब जब इस साइड से सिपेज होगा, ये लैंड सरफेस है कोई, सो इससे सिपेज होगा, ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा इस लैंड सरफेस में। यदि इस साइड भी कोई फील्ड है, ये वाटर इस साइड कहीं जाएगा, इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। सो ये राइज करेगा वाटर टेबल को, इससे जो भी सिपेज होगा, सो इट इज कॉजिंग वाटर लॉगिंग। देन हायर इरिगेटेड एरियाज, सी वाटर इंट्रूजन, तो सी वाटर इंट्रूजन कॉज करेगा वाटर लॉगिंग इन दी कोस्टल एरिया। सी वाटर इंट्रूजन की प्रॉब्लम ही कोस्टल एरियाज में होती है। देन जब हाई इवेपोरेशन लॉसेस होगा ड्यूरिंग दी लॉन्ग डेज, उस केस में ये सैलिनिटी कॉज करेगा। देन नेचुरल अकरिंग सॉल्ट इन दी सॉइल। सो दीज आर दी नेचुरल कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। नाउ ह्यूमन कॉजेज, तो ह्यूमन कॉजेज में आएगा अनसाइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड इरिगेशन वाटर, इनजुडिशियस यूज ऑफ वाटर, प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं वाटर का, उस केस में पुअर फार्म मैनेजमेंट है। देन लैक ऑफ प्रॉपर prioritization of irrigation system development, lack of irrigated management of water resource in the command areas, inadequate utilization of night flow in canal system, then lack of people participation, poor water quality यदि use कर रहे हैं irrigation के लिए, that will also cause the water logging condition, adoption of unscientific and non-sustainable cropping system, जो proper क्रॉपिंग सिस्टम यूज नहीं कर रहे हैं, दैट विल ऑल्सो कॉज दी वाटर लॉगिंग कंडीशन। ऑब्स्ट्रक्शन इन नेचुरल ड्रेन्स, नेचुरल ड्रेन्स यदि है,
सो उससे में आइदर अर्बनाइजेशन या किन्हीं भी कारणों से दी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं, इट विल ऑल्सो promotes the waterlogging condition. Then obstruction of natural outlet due to construction of highways and railways. So these are the causes of waterlogging and salinity. Now what are the measures that are used to prevent the waterlogging? So जैसे हमने causes में डिस्कस किया था कि सीपेज के कारण waterlogging हो सकती है और इरिगेशन के कारण हो सकती है। क्रॉप का देखा था, जब हम प्रॉपर क्रॉप यूज नहीं कर रहे हैं या क्रॉपिंग पैटर्न यूज नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस the waterlogging will also occurs. So to prevent the waterlogging condition, we must provide the lining of the canal so that हम सीपेज को कंट्रोल कर सकें एंड वाटर लॉगिंग की कंडीशन को रिड्यूस कर सकें। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को रिड्यूस करना है। सो जो इरिगेशन करना है वो हमें बेस्ड ऑन दी क्रॉप रिक्वायरमेंट करना है, जितना भी उस एरिया का या जो भी क्रॉप उस एरिया में है उसके अकॉर्डिंग करनी है, जो जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं ओवर सेचुरेशन ऑफ सॉइल एंड इट विल रिड्यूस द एक्यूमुलेशन ऑफ salt near the root zone as well as waterlogging condition. Then introduction to crop rotation. So cropping pattern choose करेंगे, it will helps in the enhancing the soil fertility and will reduce the continuous demand of water and break the cycle of salt accumulation by altering the deep rooted and shallow rooted crop को alternatively grow करके we can prevent the land from the salt accumulation. And जो adoption of proper irrigation method like drip irrigation या sprinkler irrigation methods को use करके हम waterlogging की condition से prevent कर सकते हैं, because ये दोनों ही micro irrigation है जो कि water provide करते हैं, वो either drop या sprinkle के form में provide करते हैं, so जो कि reduce करता है water के wastage को and now removing of the obstruction from the natural drainage. यदि कोई natural drainage है so उससे जो कि अलाउ करता है प्रॉपर सरफेस रन ऑफ को, सो यदि उसमें किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है उसे रिमूव करना, प्रिवेंट करना वाटर स्टेगनेंट एंड सब्सिक्वेंट सैलिनिटी buildup and avoid the use of alkaline water for the irrigation. So by avoiding the alkaline water for the irrigation we can prevent the area from the waterlogging condition and also prevents the deposition of salt in soil and maintain the soil productivity and it reduces the salinity hazards. So these are the waterlogging measures. लाइनिंग ऑफ कैनाल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को, क्रॉप रोटेशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रॉपर इरिगेशन मेथड्स को ऑप्ट कर सकते हैं लाइक ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन, जिससे हमारी वाटर यूज इफिशियंसी भी ज़्यादा हो। इसके साथ साथ में जो नेचुरल ड्रेनेज है इनका प्रॉपर चेक करते रहें, उसमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं है एंड बाय avoiding the use of alkaline water for the irrigation. So, this is all about the waterlogging, their effect, the causes of waterlogging and measures to prevent the waterlogging condition. So thank you so much.